discuss the derivative of inverse trigonometric functions. Derivative of inverse trigonometric functions. Derivative of inverse trigonometric functions. In sine inverse derivative, cos inverse x, cotangent, tangent inverse x derivative. Now let's say to find the derivative of sine inverse x. This is the derivative of find. तो आप let ये ले लें that y is equal to sine inverse x. इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे so that will become sine y is equal to x. Now differentiating with respect to x. So d by dx of sine y is equal to d by dx of x. Now sine derivative is cos, but again derivative of angle, and x derivative is 1. So cos y dy over dx is equal to 1. This implies that dy over dx is equal to 1 upon cos y. अब आपको पता है कि cos यानी as we know that cos square y plus sine square y is equal to 1. So cos square y equal to 1 minus sine square y. अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, so we'll get cos y is equal to 1 minus sine square y. अब अगर आप यहाँ देख लें, sin y is x, तो इसकी जगह आप x पुट कर लेंगे, so 1 minus x square square root. Now let's say this is equation 1, so putting in equation 1. So that is dy over dx is equal to 1 upon 1 minus x square square root r. Y की वैल्यू जो आपके पास है that is sin inverse x. So this implies that the derivative of sin inverse x will be 1 upon 1 minus x square. Derivative of sin inverse x is 1 upon 1 minus x square. या अगर आप let's say to find the derivative of let's say tangent inverse x. Second proof. So let y is equal to tangent inverse x. यहाँ शिफ्ट कर ले, so tangent y is equal to x. Now differentiating with respect to x. So d by dx of tangent to y, d by dx of x. So tangent derivative is secant square y, again derivative of angle. So 1, so secant square y, dy over dx is equal to 1. So dy over dx is equal to 1 upon secant square y. सिंपली मैंने शिफ्टिंग कर. अब आपको पता है कि 1 plus tangent square y is equal to secant square y is. अब यहाँ अगर आप देख लें, tangent y is what x, तो इसका स्क्वायर आ जाए. So secant square y. See, this is equation 1. So putting in equation 1. So we get dy by dx of y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, that is tangent inverse x, that is equal to 1 upon 1 plus x square. तो tangent inverse x derivative is 1 upon 1 plus x square. Sin inverse x is 1 upon 1 minus x square, square the root. तो सिमिलरली आप cos inverse x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, सीकंड को सीकंड का, कोटेंजेंट का. तो हम यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव का. तो फर्स्ट वन यानी d by dx of sin inverse x is equal to
1 upon 1 minus x square square root. But keep in mind, again derivative of angle आप जरूर लेंगे. d by dx of cos inverse x is minus 1 upon x square square root. d by dx of tangent inverse x is 1 upon 1 plus x square. d by dx of tangent inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Again derivative of angle. d by dx of secant inverse x is 1 upon x times x square minus 1 square the root. d by dx of cosecant inverse x is minus 1 upon x square minus 1 square the root. Again derivative of angle. तो ये लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आपको याद होना चाहिए. इससे फिर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, वो एमसीक्यूज भी आप इसके हेल्प से आप सॉल्व करेंगे. तो अगर आपको sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता चल जाए, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो cos इनवर्स में सिंपली माइनस आ जाएगा. अगर टेंजेंट इनवर्स x आपको पता चल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो फिर कोटेंजेंट में माइनस आ जाएगा. सीकेंट का पता हो 1 अपॉन x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो कोसेकेंट में आपके पास माइनस आ जाएगा. तो अगर साइन का पता हो तो cos भी आसान है, टेंजेंट का पता हो तो कोटेंजेंट सिर्फ माइनस का फर्क है, सीकेंट का पता हो तो कोसेकेंट में सिर्फ माइनस आ जाएगा. तो ये आपको याद होने चाहिए और आप इसमें से एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे. कीप इन माइंड. तो ये आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अगर आपको ये चीजें याद है, ये फार्मूलाज याद है, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ये फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है कि लेट्स से फाइंड एग्जांपल कर ले, मेरे ख्याल में होगा एग्जांपल है, if y equal to tangent inverse x square, find dy over dx. लेट्स से तो आप क्या करेंगे, अल्फाज क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो यह आ जाएगा dy over dx और यहाँ d by dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर. अब यहाँ देखिए, टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर जो इज 1 upon 1 plus x स्क्वायर. अब x के बजाय यहाँ क्या है, x स्क्वायर रूट है, तो 1 upon 1 plus x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर के बजाय x स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर. फिर यहाँ है एंगल का अगेन डेरिवेटिव, यानी x स्क्वायर रूट का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर रूट का अगेन डेरिवेटिव लेंगे. तो यह आ जाएगा dy over dx is equal to 1 upon 1 plus x, और यहाँ इसका पावर 2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट का, पावर में से 1 माइनस, सो 1 upon 1 plus x और 1 upon 2 x पावर माइनस 1 upon 2. या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 upon 2 और ये x पावर 1 upon 2. तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 times x square root 1 plus x. So that is the required derivative of the given function, that is the tangent inverse x square root. तो सिंपली अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं. अब जरूर नहीं अगर आपको ये गिवन हो कि y equal to sin inverse x over a, तो टू फाइंड dy over dx, लेट्स से ये बुक में है या नहीं है, वैसे मैंने ले लिया ना ताकि आप अप्लाई कर लें इसको. तो अब y now y is equal to sin inverse x over a, so differentiating with respect to x, तो dy over dx. अब यहाँ देखिए d by dx of sin inverse x over a. अब यहाँ देखिए 1 upon 1 minus x square, x के बजाय x over a, तो इसका आप ले लेंगे स्क्वायर स्क्वायर. बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज x over a, तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा 1 upon 1 minus x square e square square रूट, और यहाँ 1 upon a आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का 1 है और a कांस्टेंट है. तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा, अगर आप देख ले e square एलसीएम हो गया और यहाँ इस स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर और 1 upon a.
तो अगर आप देख ले यहाँ ये यहाँ मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से dy और dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर करूँ, और यहाँ डिवाइड बाय a इंटू 1 अपॉन a, तो ये इसके साथ कैंसिल, सो वी गेट 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर करूँ, सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x ओवर a। सही, अभी इस पर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में। So now question number 3, use any rule to find the dy over dx। तो वही फार्मूलाज हम यूज करेंगे। सोल्यूशन ए पार्ट का y is equal to cos inverse x over a। So differentiating with respect to x, so dy over dx, यहाँ dy dx of cos inverse x over a। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x यहाँ से देख ले, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या है x ओवर a, सो 1 माइनस x ओवर a का स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। तो यहाँ देख ले, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ 1 अपॉन a आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और a कांस्टेंट है, कुछ रूल अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते। तो यहाँ देख ले, फिर वही कंसेप्ट जिस तरह हमने एग्जांपल कर दिया, माइनस 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर, और फिर यहाँ 1 अपॉन a। तो अगर आप फॉर्मूला देख ले, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a into 1 upon a, तो ये दोनों कैंसिल, so we get minus 1 upon a square minus x square square root, so that is the required derivative of cos inverse। Now next is d part, that is y is equal to cosecant inverse 1 plus x square square root। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल बिकम dy ओवर dx। अब इस फार्मूले के मुताबिक माइनस है, माइनस 1 अपॉन x, तो x के बजाय यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर स्क्वायर, x की बजाय क्या है 1 x स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर स्क्वायर। अब क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 विद इन द स्क्वायर, सो दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, सो x की जगह क्या है 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, दैट इज 1 plus x square square, यानी फार्मूला के पास ये है माइनस 1 अपॉन x, तो x की बजाय क्या है 1 plus x square square दो, और into 1 अपॉन फिर x square माइनस 1, तो x की जगह क्या है यहाँ 1 plus x square square दो, तो उसका स्क्वायर माइनस 1, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, दैट इज 1 plus x square। अब यहाँ देख लेंगे x, this is equal to minus 1 upon 1 plus x square square root, फिर यहाँ square cancel, so 1 plus x square minus 1 whole square root। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है that is 1 upon 2 times that square root, which is 1 plus x square square root, but again derivative of 1 plus x square, so that is minus 1 upon 1 plus x square square root, ये cancel, so we get x square square root, और यहाँ 2 times 1 plus x square,
तो यहाँ हम लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इसके साथ कैंसिल माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ x आ जाएगा और यहाँ के पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट और यहाँ x भी है, सो दैट इज कैंसिल आउट, सो वी गेट -1/, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू -1/1 प्लस x स्क्वायर, सो दैट इज रिक्वायर्ड।